कांग्रेस डोमिनेंस। कांग्रेस की प्रभुत्व की प्रकृति। India is not only country to have the experience the dominance of one party. If we look around the world, we find many other examples of one party dominance, but there is a crucial difference between these and the Indian experience. In the rest of the cases, the dominance of one party was ensured by compressing democracy in some countries like China, Cuba, Syria. The constitution permit only a single party to rule the country. Some other like Myanmar, Belarus, Egypt, and Eritrea are effectively one-party state due to the legal and military measures until the few years ago. Mexico, South Korea, and Taiwan were also effectively one-party dominant states. What distinguishes the dominance of the Congress Party in India from all these cases was it happened under democratic conditions. Many parties contested election in condition to free and fair election, and yet the Congress managed to win election. After election, this was similarly to the dominance the African National Congress has enjoyed in South Africa after the end of apartheid. Now, कांग्रेस की पार्टी का प्रभुत्व किस प्रकार से अकेला प्रभुत्व कायम रहा कि अगर भारत को देखते हो तो भारत ही एकमात्र ऐसा कंट्री नहीं है जो कि एक पार्टी की या सिंगल पार्टी डोमिनेंस की दौर से गुजर रहा हो। अगर हम दुनिया के बाकी के देशों में भी देखें तो हम ये पाएंगे कि पार्टी का जो डोमिनेंस है बहुत से हमें कंट्री मिलेंगे जहाँ डोमिनेंस पार्टी मिलेगी। आप देखेंगे एग्जाम्पल में कि अगर अदर पार्टीज को हम देखते हैं, अदर कंट्रीज में देखते हैं तो एक पार्टी की डोमिनेंस जैसे इंडिया में है, ऐसा ही भारी फर्क आपको अदर कंट्रीज में मिलेगा जहाँ पर डेमोक्रेसी कायम है। तो ये जो कंट्रीज हैं जैसे चाइना, क्यूबा, सीरिया, यहाँ सिर्फ एक ही पार्टी है जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी कहलाती है। ऐसे ही आप देखेंगे कि एक पार्टी का शासन जिनको अनुमति या परमिशन दी गई, कुछ ऐसे देश जैसे म्यांमार, बेलारूस, ऑस्ट्रेलिया में एक पार्टी का डोमिनेंसी या उनके कानून को या फिर सैन्य यानी कि आर्मी के उपायों के चलते कायम किया हुआ है। अब से कुछ साल पहले मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, ताइवान में भी एक ही पार्टी की डोमिनेंस वाले कंट्री थे। तो इंडिया में कायम एक पार्टी की डोमिनेंस इन एग्जाम्पल से कहीं अलग है। यहाँ एक पार्टी का डोमिनेंस डेमोक्रेसी कंडीशन में कायम हुआ है। तो अनेक पार्टियों ने यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के माहौल में एक दूसरे से कंपटीशन की और तब भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीतते चले गई। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड की कंडीशन में भी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को कुछ ऐसा ही दबदबा वहाँ पे कायम रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं तो साउथ अफ्रीका से ये काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। Now, the fruit of extraordinary success of the Congress Party to go back the legacy of freedom struggle. Congress was seen as inheritor of the Congress movement. Many of leaders who were in the forefront of a struggle were now contesting election as Congress candidate. The Congress was already a very well organized party, and by the time the other party could even think of a strategy, the Congress had already started its campaigning. In fact, many parties were formed only around independence or after that. Thus, the Congress had the first for the bloc advantage. By that time, the independence the party had not even only spread across the length and breadth of the country as we had seen in the maps, but also had an organizational network down to the local level. Most importantly, as the Congress will till recently a national movement, its nature was all inclusive. All these factors contributed to the dominance of the Congress party. अब कांग्रेस पार्टी को आप देखते हो तो इसने जो सफलता हासिल की है, ये सफलता असाधारण सफलता है जिसे कि हम फ्रीडम स्ट्रगल के द्वारा
इनको विरासत में मिली है। तो कांग्रेस पार्टी को नेशनल मोमेंट के बारिश होने के बारे में कहा जाता है। तो आज़ादी के आंदोलन में सबसे आगे रहे जो लीडर्स थे, अब कांग्रेस के वो उम्मीदवार के रूप में चुनाव में खड़े हुए और इलेक्शन कांग्रेस पहले से ही एक स्टैंड पार्टी के रूप में बाकी दलों में अपनी रणनीति को सोच रहे थे। तो कांग्रेस ने अपना कैंपेनिंग स्टार्ट कर दी। दरअसल अनेक पार्टियों का गठन स्वतंत्रता के समय हुआ था, या उसके आसपास हुआ था, या उसके बाद में हुआ था, लेकिन कांग्रेस जो थी ये अकेली पार्टी थी जिसने इसका फायदा उठाया। और इंडिपेंडेंस के समय या फ्रीडम के समय यह पार्टी देश में चारों ओर फैली हुई थी। और ये जो आपने जो देखा है मैप, इसमें हम देख चुके हैं कि इस पार्टी का संगठन, इसका जो नेटवर्क था, ये गांव तक पहुंच चुका था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कांग्रेस हाल आज़ादी के दौरान सबसे आगे रही और उसकी प्रकृति सबको समेट कर या मेल जोल करके एक साथ मिलकर चलने की एक नेचर था, जिसे सारी पार्टियों को अपने अंदर समेट रखा था।